Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to GIV CIV Prep. So, guys, in this particular session, we are going to continue with our discussion based on ratio analysis. Okay. So, in our previous session, where we generally practice a number of questions. So, similarly, in this particular session as well, we are going to discuss a number of questions, right? So, ratio analysis, जैसे like to solve these kind of question, as I said ki like 70% questions based on this particular one will be conceptual. Still I'm saying repeating that particular same thing because like आपको ये अर्थमेटिक देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, नहीं, ठीक है. So utmost priority is working on concept side. Then if you are good with concept, you will be able to solve the numericals as well, right? So as like first I'll show you some formulas as promised. So these are the formulas. So मैंने आपके लिए एक sheet बनाया हुआ है, ठीक है. I'll share this particular sheet with all of you, right? And try to write down these particular one. आप इनको कहीं पे write down करके रख लीजिए. Whenever you solve any question, just do the open cheating for the initial practice. तो जिससे अगर आपको रेशियो धीरे धीरे आपका क्या होने लग जाएगा, याद होने लग जाएगा, ठीक है. सो वी हैव करंट रेशियो विच वी ऑलरेडी डिस्कस, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट. If you talk about the quick ratio, which is also known as asset test ratio, so current asset minus inventory divided by current liabilities. Cash ratio is cash and equivalents divided by current liabilities. Working capital ratio, which is current asset minus current liabilities divided by total asset. Okay, so this is something related to your liquidity ratios. ठीक है. Apart from that, if you talk about the solvency ratios, तो आपके जो सिलेबस में है आपका डेट टू एसेट रेशियो, ठीक है. सो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है. डेट टू कैपिटल आपका टोटल डेट डिवाइड बाय कैपिटल, विच इज टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. डेट टू इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है. सो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी. फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है. सो एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय shareholders equity. Okay, so these are the solvency ratios which are generally part of your curriculum. ठीक है. Profitability ratios again very important one, but in your curriculum we have gross profit margin, gross profit divided by sales into 100, operating profit divided by sales into 100, ठीक है. And net profit आपका, so net income divided by sales into 100, ठीक है. Apart from these, we have return on asset and return on equity. So return on asset is net income divided by asset, and return on equity is net income divided by shareholders equity. And this is also going to help you out in your RBWM unit number 4 as well, ठीक है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये आपके जो फॉर्मूलाज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और कैसे हमने लास्ट टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे आपका, ठीक है. Then apart from this, return on investment, so operating return on asset, this is not part of your curriculum. ROA, we already discussed this. Return on total capital, it is also not part of your return on equity. We already discussed. This is so you can ignore this particular slide because these are not part of your curriculum. Next one is, guys, basic EPS, diluted EPS, कैश फ्लो पर शेयर, ठीक है, EBITDA पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है. सो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन वी हैव EPS, so net income minus preferred dividend, so weighted number of shares, this is part of your curriculum, ठीक है. Then we have cash flow is not, remaining are not part of your curriculum, ठीक है. So P ratio is there, ठीक है. So how we calculate P ratio? So P ratio is equal to your current market price divided by EPS, earning per share. Okay, so do remember this particular one. I missed that PE ratio. Okay. So then if you talk about the activity ratios, so out of activity, given activity ratios, so account receivable, we already practiced one question based on this. Revenue divided by average accounts. Okay. Then we have total turnover. No. So this is the only ratio which is part of your curriculum. Okay. So these are some areas which you have to रिमेंबर, ठीक है. तो आप कहीं पे एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, कहीं पे लिख के इनको, जहां पे भी आप प्रिपरेशन करते हैं इनिशियली हाउ यूल प्रैक्टिस की आई विल प्रोवाइड यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल, ठीक है. तो उसके थ्रू आप इनको देखें और आंसर करें, ठीक है. सो दीज आर सम क्वेश्चन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस सेशन. आई होप सबने वो सेशन आपका देख लिया होगा, ठीक है. अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिएगा, देन इस क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं आपका, ठीक है.
So now like EPS this हाँ, आई गेस यहां तक हमने आपका सॉल्व किया था लास्ट टाइम, ठीक है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. सो क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर्स, ठीक है. अ कंपनी नेट इनकम इज 1,20,000 एंड सेल्स इज 6 lakh, टोटल एसेट इज 4 lakh, ठीक है. सो यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है. सो रिटर्न ऑन एसेट आपका हमें इसमें कैलकुलेट करना है. बेसिकली इट इज नोन एज ROE, ठीक है. सो नाउ अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, फर्स्ट सी द फॉर्मूला, ठीक है. आप कैसे मतलब इनिशियली कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे हम लोग कैसे करते हैं, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है. सो आपने ऐसा मतलब इनिशियल प्रैक्टिस आपका, ठीक है. सो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100. अब अगर आपको ये चीज पता है ना, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. सो इनिशियली इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ओपन चीटिंग कीजिए. एक 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. सो रिटर्न ऑन एसेट आपका नेट इनकम इज हाउ मच, 1.20 लाख, ठीक है. डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट इज हाउ मच, 4 lakh, ठीक है. into 100. So if you solve this particular equation, you will get to know your answers. So which is आपका 30%, ठीक है. So 30% is the right answer for this particular one. समझ में आ रहा है कैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है. A company has price to earning ratio, P ratio 10 and EPS is 15. What is market price of this particular company shares, ठीक है. So how we calculate P ratio? So P ratio is equal to current market price divided by EPS, ठीक है. EPS. So now in this particular case they have given you EPS P ratio 10, current market price you have to calculate, ठीक है. Divide by EPS is how much, 15 आपका, ठीक है. So if you solve this particular equation, like current market price, so it is 150. 150 should be right answer for this particular one here. So current market price, if you shift this particular one, so it is 150, ठीक है. So 150 will be right answer. समझ में आ रहा है ना कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं. करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू आपका लाइक योर पी इनटू आपका EPS, ठीक है. सो इट इज आपका 150. तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. सिंपल सा आपका, ठीक है. सो देखो सारा खेल किसका है, आपका फॉर्मूलाज का. तो अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिए, थोड़ा उनको अंडरस्टैंडिंग ये इसका यूजेज क्या है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है. अ कंपनी हैज EPS ऑफ 25 and P ratio is 12.5. If the company's net income is 5 lakh, how many outstanding shares does the company have? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल आपका, ठीक है. जैसे मतलब हाउ यूल सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन, थ्रू EPS, ठीक है. EPS आपका EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, इनटू सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है. सो नंबर ऑफ शेयर्स. So in this particular case, your current EPS is how much? EPS is 25, ठीक है. So 25 and your profit after tax is how much? 5 lakh divide by your number of shares कितने हैं आपका? So number of shares you have to calculate, ठीक है. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, so you'll get to know, ठीक है. So EPS is equal to net income divided by number of shares. So EPS is 25, net income is this, so it is 20,000. So total number of shares मतलब like कितना था आपका, 5 lakh था ना. हाँ. So 5 lakh divide by 20,000, 5 lakh divide by sorry 5 lakh divide by आपका 25, so it is 25,000, ठीक है. So sorry 20,000, ठीक है. So this is your calculation, ठीक है. बहुत आसानी से. Next one, a firm operating profit margin is 20%, ठीक है. So operating profit margin या ratio is 20%. And net sales is 1,50,000. If fixed asset cost is 2 lakh, वेरिएबल कॉस्ट इज 1 लाख, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो आप इनको आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है. सो हाउ यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू योर ग्रॉस सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपका, इसके अलावा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हमें क्या दिया है इसमें आपका, इन what we have to calculate operating profit. So operating profit is equal to gross profit minus operating expenses. If the fixed cost is this and variable cost is this, okay. So okay, so how, what formula, operating profit margin, हाँ अच्छा okay, operating profit margin से solve किया है, sorry, ठीक है. How we calculate operating profit margin. So operating profit margin is equal to
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अभी हमने फॉर्मूलाज देखे थे ना, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना है आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। हाँ ओके ठीक है, तो ऑपरेट 20% आपका ये है, एंड योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट एंड सेल इज 2 लाख। ओके, इस तरीके से आपका सॉल्व होना था, सॉरी, ठीक है। सो इट केम्स टू आपका 3 लाख रुपीज, ठीक है। सो ऑपरेटिंग आपका से अगेन अगेन फॉर्मूला डिफरेंट, ठीक है। If a company equity is 2 lakh and net income is 4 lakh, what is written on equity? ठीक है, so equity divide by, so income divide by equity, so and into 100, ठीक है। so आपका क्या हो जाएगा, 4 lakh divide by 2 lakh into 100, so it is 25%, ठीक है। so net income divide by shareholders equity into 100, completely formula driven, जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था उसी से रिलेटेड। तो अगर आप उस प्रैक्टिस में आओगे ना, आसानी से ये चीजें आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। A company dividend per share is 12 rupees and dividend payout ratio is 40%, ठीक है। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। बट हमें क्या निकालना है इसमें, आपका कंपनी डिविडेंड पर शेयर इज 12 रुपीज एंड डिविडेंड पे आउट, ओके। सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ओके। सो इट इज डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस आपका, सॉरी, ठीक है। सो इस सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू यूज, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस आपका, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, सो 12% एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। हाँ, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज ईपीएस इज नॉट गिवन। अच्छा ओके ओके, हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज गिवन 0.40%। आई विल चेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इफ अ कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6,40,000, व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिंक क्वेश्चन, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका average inventory is 6,40,000 divided by 8, so it is 80,000. So next one, a firm dividend payout ratio is 40% and earning per share is 10 rupees. So what is DPS? So DPS is equal to your dividend per share is आपका dividend payout ratio, if you calculate this one, ठीक है, so it is 4.40, so 10 divided by 0.40 डिवाइड इंटू 10, सॉरी, आपका 4 रुपीज आपका, ठीक है। सो 4 रुपीज विल बी राइट आंसर, ठीक है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो से ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगेन डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, सो डिविडेंड पर शेयर इज लाइक आपका अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलते हैं, सो अगेन वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन। अ कंपनी हैज करंट रेशियो 3:1 एंड क्विक रेशियो 2:1। if the current liability are 50,000, so what is value at inventory? So first आपका current ratio, current asset divide by current liabilities, आपका अगर हम लोग क्विक एसेट की बात करते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो अगर जो हमें गिवन है आपका, जैसे क्विक रेशियो इज 2:1 एंड करंट रेशियो इज आपका 3:1, ठीक है। सो 3:1 ऑफ दिस एंड 2:1 ऑफ दिस, ठीक है। सो इनका जो डिफरेंस आपका है 1,50,000 इन 1 लाख, सो दैट इज 50,000, जो इसके लिए आपका आंसर बनेगा। तो ये मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस आपके हैं प्रैक्टिस के थ्रू आप इनको ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। Which of the following is not a classification of functional? This we have solved in balance sheet ratio. So balance sheet ratio that generally comes under the traditional one. ठीक है. A company has 5 lakh shares. Net profit after tax is 25 lakh. Current market price is 70. So P ratio. तो P ratio कैसे निकालते हैं? P ratio is equal to your current market price divided by EPS, earning per share. ठीक है. तो इसमें हमें क्या दिया है आपका? हमें दिया है आपका करंट मार्केट प्राइस 70 रुपीज, ईपीएस इज नॉट गिवन, सो ईपीएस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रीफर्ड स्टॉक एंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स,
तो आपका डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 25 लाख, देयर इज नो डिविडेंड एंड नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, सो ईपीएस इज 5 रुपीज। तो इस कंपनी का ईपीएस इज 5, सो आपका क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 14। ठीक है, सो 14 विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, सो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन, calculate price to earning ratio when a market price of shares is 560, earning per share is 150, dividend is 40। ठीक है, अब P रेशियो देखो, ये क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है, सो इट इज आपका करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ठीक है, दैट मींस there is no use of this particular statement because this is already adjusted with your EPS। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस आपका 560 एंड इट इज आपका कितना 140। ठीक है, सो 140, सो इट इज 4, सो 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, which of the following statement is true regarding debt collection period? ठीक है, so debt collection period, the ratio indicate the total debt and creditors in a company. No, the ratio indicate the average time taken to collect debt, and it is circular for the assessing borrowers collection efficiency. Okay, this is a higher debt, a higher ratio is describable the significant or longer debt collection period. The ratio shows the extent to which lender collect debt, and so second should be right answer for this particular one. Yes, okay. So debt collection ratio indicate the average time taken to collect debt. It is crucial measure for lenders to assess borrowers collection efficiency. A higher ratio may indicate fund block in debtors. A more extended collection period indicate a credit collection process that is overly lenient and inefficient. Okay, next one, the current ratio is a financial matrix that measure a company's ability to meet its short-term obligation in all. So this liquidity ratio offer insight into a company's short-term financial health and its capacity to meet its immediate financial this. How will purchasing fixed asset worth rupees 20 lakh using long-term debt affect the current ratio? ठीक है, तो basically question is based on this. ठीक है, so a company who purchase current आपका क्या purchasing fixed asset means property, plants, equipments, goodwill and all. ठीक है, 20 lakh rupees and it is financed through the long term debt. ठीक है, so there will be no impact on current asset. ठीक है, so there will be no change in current ratio of this particular company. हाँ, जो डेट टू इक्विटी या अदर्स है उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट बिकॉज दोनों ही जो एलिमेंट है आपका नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ओके, which of the following is true with regard to traditional one, Tim? It is profit and loss account ratios are traditional classification. They generally comes under this particular one. Rest three are functional classification. Okay, next one, which of the following statement are incorrect with respect to ratio analysis? Accounting ratios can be classified between two. True. Traditional classification is based on financial statement, balance sheet and all. True. Inter statement or composite is part of no, it is part of traditional one. So incorrect statement, so option C will be right answer for this particular question. Next one, from the given information calculate current ratio. So current ratio, cash, current asset, equivalent current asset, stock in trade, current asset but not quick asset, prepaid expenses, current asset but not quick asset. So that means this divide by current liabilities. So 1 lakh 2 lakh 10,000, then 5 lakh 10,000, 5 lakh 50,000, 6 lakh. Okay? So it is current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. So this 6 lakh divided by 2 lakh. So it is 3 is to 1. Okay? So current ratio in this particular case is 3 is to 1. Okay? So company's current ratio is 3 is to 1. Okay? From the given data, calculate cash ratio for RAM Enterprise. So cash and equivalent divided by current liabilities. How we calculate cash ratio? अभी मैंने आपको formulas दिखाए थे, ठीक है? So cash ratio is equal to cash plus equivalents divided by current liabilities. So cash plus equivalents is like 3,50,000. So 3.50 lakh divided by 1.25 lakh. So 1.25 lakh. So the outcome will be your answer. ठीक है, कितना होता है ये?
2.8, हाँ बिल्कुल सर, 2.8 will be right answer for this particular question. ठीक है, next one, debt to equity ratio for Rohan and company. So total debt divided by equity. ठीक है, so debt divided by equity. So debt is आपका 1 लाख, ठीक है, debt divided by equity, ठीक है, so and आपका 2.5 लाख, ठीक है, so 0.40, ठीक है, so 0.40 will be right answer for this particular one. ठीक है, so debt divided by equity, simple सा आपका, ठीक है, so 1 लाख divided by 2,50,000. अगेन देखो, अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है ना, तो आप ये सारी जर्नी आपका आसानी से पार कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, इक्विटी रेशियो. सो इक्विटी रेशियो इज बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट. ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट. ठीक है, टोटल एसेट. आप शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं इसमें आपका, ठीक है, कैपिटल शेयर होल्डर्स 1 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस अगेन दिस, तो ये कितना हो गया आपका 3.45 लाख, 3.45 लाख डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट करंट एंड नॉन करंट, दैट इज 7.50 lakhs. ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टू नो योर आंसर्स. ठीक है, सो 3,45,000 डिवाइड बाय दिस, सो इट इज आपका 0.46. ठीक है, तो 0.46 दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, बट कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये रेशियोज. रेशियोज को समझें, उनको याद रखने की कोशिश करें. ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एंड में आपका एक सारे रेशियोज का कंपाइलेशन पे रखा है. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस में उसको अगर लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो ये एक पहला सेशन मैंने इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया था कि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें कि क्या रिक्वायरमेंट है इसकी और ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं. उसके लिए मैंने आपके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई विल प्रोवाइड यू दिस पर्टिकुलर वन. तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले फॉर्मूला शीट, ठीक है, जैसे इनको कहीं पे लिख लो आप लोग. ठीक है, एटलीस्ट जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था. ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका एक्टिविटी, तो ये जो रेशियोज है, मार्केट प्रोस्पेक्ट एंड ऑल, ठीक है, एटलीस्ट डू प्रिपेयर दोस पर्टिकुलर फॉर्मूला शीट. उनको आप कहीं पे लिख लीजिए एंड इनिशियली हाउ विल सॉल्व, जैसे मैंने आपको इनको सॉल्व करके दिखाया. तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको आसानी से ये चीजें याद रहेंगी. ठीक है, तो प्रैक्टिस का खेल है पूरा, और कुछ नहीं है. ठीक है, रेशियो एनालिसिस वाला यूनिट की अगर हम बात करें, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सेशन, बट इस सेशन को अलग से करने का मोटिव था कि लाइक आपने जो पहले उसमें समझा डिटेल में, और कैसे आप अपना इसको प्रैक्टिस बना करके रख सकते हैं. आई होप सबको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और अपनी क्वेरीज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे. नाउ आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन. तो वहाँ पे जो अगला यूनिट है उससे रिलेटेड आपके जो एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज हैं उनको, एंड soon I'll start class delivering for the IN IFS also. ठीक है, तो क्योंकि हम मॉड्यूल सी आपका पहुंच चुके हैं AFM के अंदर. नाउ लाइक वंस वी डन विद दिस मॉड्यूल सी, तो उधर से हम लोग आपका IN IFS को भी स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज अदरवाइज आप लाइक वी आर टेकिंग, हमारा जो टारगेट है बेसिकली कि बाय द एंड ऑफ मार्च आपका AFM एंड IN IFS, ठीक है, 2 पेपर आपका कवर कर देंगे. देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी आर लाइक ओनली फोकसिंग ऑन योर PPB एंड RBWM. ठीक है, RBWM बहुत आसान है, 1 हफ्ता जो उसके लिए मिला है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट PPB इज बिट लेंथी, तो उसके ऊपर भी आपका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, so this is it guys, bye bye, take care all, and please do practice these particular question, and if you find any challenges please do share with me. Okay, so this is it, bye bye, take care all, have a nice day, thank you.